Good morning, students. Today we start the story Ulysses and the Cyclops. Ulysses was a king of Ithaca, a small Greek island. He was a great warrior and adventurer. He fought in the War of Troy, which lasted 10 years. After the war, he set out on a long journey homewards. On the way, he faced many adventures. यूलिसेस इथाका का राजा था। इथाका एक छोटा सा ग्रीक आइलैंड है। वो एक अच्छा सिपाही था और साहसी था, ब्रेव था, और वो वॉर ऑफ ट्रॉय में लड़ा था जो कि 10 ईयर्स तक चली थी। आफ्टर द वॉर ही सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी होमवर्ड्स, और लड़ाई ख़त्म होने के बाद उसने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया था। उसने अपने घर की तरफ जर्नी स्टार्ट कर दी थी और रास्ते में उसके बहुत सारे एडवेंचर्स आते हैं। अब यही एक एडवेंचर है विद द साइक्लॉप्स हु वर जेंट शेपर्ड्स। साइक्लॉप्स से जो बड़े बड़े शेपर्ड्स होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं। Ulysses and his companions reached an island which, although they did not know it, was a land of Cyclops. The Cyclops were giant shepherds with only one eye each set in the middle of their forehead. They lived in caves among the hills and kept great flocks of sheep. They did not till the land, but the uncultivated earth produced for them rich wheat and grapes. They did not know how to make wine or bread. They lived each man to himself without laws or government. Ulysses, with a chosen party of 12 followers, went to explore what sort of men lived there. यूलिसेस अपने साथियों के साथ एक आइलैंड पे पहुंचता है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता है कि वो साइक्लोप्स की ज़मीन होती है, साइक्लोप्स का लैंड होता है। वो साइक्लोप्स बड़े बड़े शेपर्ड्स हैं जिनकी माथे पर बीच में एक आँख होती है बस, और वो पहाड़ों के बीच में गुफाओं में रहते हैं और एक शीप का ग्रुप रखते हैं, वो चराते हैं, और वो लैंड को कल्टीवेट नहीं करते हैं, जबकि लैंड उन्हें खुद ही व्हीट एंड ग्रेप्स प्रोवाइड करती है उन्हें, लेकिन वाइन और ब्रेड उनसे बनाना नहीं आता, और उनका कोई अपना कानून नहीं होता है। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। यूलिसेस अपने 12 साथियों के साथ उस ज़मीन को एक्सप्लोर करने निकलता है। They came to a big cave close to the sea. Nobody was there, but from the size of everything inside the cave, they could get an idea of the vast proportion of its owner. They found baskets of cheese, bowls of milk, and young lambs playing in a stone enclosure. The men wanted to take as much cheese as they could carry and return to their ships, but Ulysses was anxious to see the owner of the cave. So they stayed there, eating cheese and drinking wine which they had brought with them. फिर वो एक बड़ी सी गुफा के पास आते हैं जो समुद्र के पास थी। वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ के हर चीज़ के साइज़ को देखकर उन्हें पता लग रहा था कि यहाँ पर कोई जो वहाँ उनका मालिक है वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है। वहाँ पर उन्हें बास्केट्स मिलते हैं, चीज़ के, मिल्क के बाउल्स मिलते हैं, और छोटे छोटे भेड़ खेलते हुए नज़र आते हैं। वो आदमी अपने साथ बहुत सारा चीज़ ले जाना चाहते हैं, जितना वो ले जा सकते थे, लेकिन यूलिसेस को वहाँ के ओनर को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, तो इसीलिए वो वहाँ पर रुक जाते हैं, चीज़ खाते हैं, वाइन पीते हैं, और जो अपने साथ ले जा सकते थे वो लेते हैं और कहीं छुप जाते हैं। In the evening their ears were deafened with a noise like the falling of a house. It was the owner of the cave who had been out all day feeding his flock, as his custom was in the mountains, and now drove them home in the evening from pasture. The Grecians hid themselves in the remote parts of the cave at the sight of the giant. He threw down the trunk of a tree which he was carrying for the firewood. Next he drove his flock of sheep into the cave, and then picked up a great flat stone and placed it in the entrance to serve as a door. 20 horses could not have dragged away the stone. Then the Cyclope lighted a fire and sat down to milk his sheep and goats. फिर शाम को इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि उनके कान बहरे होने को होते हैं। ऐसी तेज़ आवाज़ होती है जैसे कि कोई घर गिरा हो, और वो कौन आता है? उस केव का मालिक आता है, जो कि पूरे दिन अपनी भेड़ बकरियों को चरा के, जैसा कि वो रोज़ करता है, भेड़ बकरियों को चरा के अपने केव पर वापस आता है, और फिर
जब वो आवाज़ सुनते हैं ग्रीशियंस, ग्रीक के यूलिसिस उसके साथी, तो वो अपने आप को कहीं दूर छुपा लेते हैं केव में, और साइक्लोप्स आता है और एक पेड़ का बड़ा सा तना लाता है जो वो फायरवुड आग जलाने के लिए लाता है। फिर वो केव के अंदर शीप को ले जाता है और बड़ा सा एक पत्थर लेता है और उससे केव का गेट एक तरह से पत्थर से बंद कर देता है। और वो पत्थर इतना भारी होता है कि 20 हॉर्सेस भी उसे नहीं हिला सकते थे। फिर साइक्लोप आग लगाता है उस ट्रंक से एंड मिल्क और शीप और गोट्स को मिल्क प्रोवाइड करता है। Suddenly, by the glimmering light, the giant saw some of Ulysses' men and asked them who they were. Only Ulysses summoned courage to answer that they were neither robbers nor traders. They were Greeks returning home from Troy and had lost their way on the seas. He asked the giant to be kind to them in the name of their chief god Zeus. सडनली एकदम जब जैसी लाइट जलती है उस दानव को यूलिसिस के आदमी नज़र आते हैं, तो वो पूछता है तुम कौन हो। तो उनमें से बस यूलिसिस ही उसके क्वेश्चन का आंसर देने की हिम्मत कर पाता है। वो कहता है कि ना हम चोर हैं, ना हम कोई व्यापारी हैं, हम तो ग्रीक्स हैं जो ट्रॉय के वॉर से वापस आ रहे हैं लेकिन अपना रास्ता कहीं भटक गए हैं। तो वो जायंट से कहता है कि आप दया करके वो उनके गॉड होते हैं ज़्यूस, उनका वास्ता देख के कहता है कि आप हम पर दया करिए। ही रिप्लाइड नथिंग बट ग्रिपिंग टू ऑफ द मैन एज इफ दे हैड बीन नो मोर देन चिल्ड्रन, ही डैश्ड देयर ब्रेन्स आउट अगेंस्ट द अर्थ एंड टोर इनटू पीसेस देयर लिम्स एंड डिवोर्ड देम। वो कुछ जवाब नहीं देता है साइक्लोप, लेकिन उनके यूलिसिस के 2 आदमियों को अपने मुट्ठी में उठाता है जैसे कोई बच्चों को उठाया हो और उनको ज़मीन पर पटक के उनके पीसेस करके उन्हें खा जाता है। देन आफ्टर ड्रिंकिंग many bowls of milk, he lay down and fell asleep among his goats. Ulysses drew his sword and wanted to thrust it with all his might in the bosom of the sleeping monster, but he remembered that they would never be able to move the big stone placed in the entrance. So even if they succeed in killing the giant, they would be prisoners in the cave and would starve to death. फिर उसके बाद साइक्लोप बाउल्स ऑफ मिल्क पीता है, बहुत सारे मिल्क के बाउल्स पीता है और लेटकर सो जाता है गोट्स के बीच में ही। यूलिसिस अपनी तलवार निकालता है और उसका मन करता है कि वो उसका सीना उससे चीर दे सोते हुए, लेकिन उसे याद आता है कि वो जो बड़ा सा पत्थर उसने केव के एंट्रेंस पे लगाया था एज अ डोर, वो उन्हें नहीं हिला सकते हैं। तो इसीलिए वो सोचता है अगर हमने इसे मारने में सफल हो भी गए तो हम यहाँ पर बेकार में ही मर जाएंगे, यहाँ पर बंदी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए वो कोई प्लान सोचता है। वो क्या प्लान सोचता है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करें।